Welcome to our video. Our topic is dimensions. Our team consists of 6 members: Hetal, Ananya, Vaibhav, Krish, Ruchi and myself Alankriti. So अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं that what are dimensions? Dimensions है क्या? In simple language we take dimensions as different axes. For example हम ले अगर तो एक रूम है हमारा, अगर उसकी हम लेंथ लेते तो वो होती है हमारी x एक्सिस, हम उसका breadth लेते तो वो होता है हमारा y एक्सिस, एंड जब हम उसका हाइट लेते दैट इज हमारा z एक्सिस. There are various debates throughout the history on the topic dimensions. Aristotle started in the first book of Heaven. The line has magnitude in one way, the plane in two ways, and the solid in three ways. Beyond these, there is no other magnitude because the three are odd. Later, philosophers like Simplicius, Bertolini have given their own ideas about the topic dimension. After a beautiful history of dimension, we are here to talk about 0D to 3D objects. What are 0D and 3D objects? These are mainly dimensional. Okay, 0 dimensional, 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional and moreover. So first of all, we talk about 0 dimension. What is 0 dimension? Suppose we have taken a point here. Now this point does not have any length, does not have any breadth and cannot be extended in any directions because it is a point which is just till here. Okay, it is not going to go anywhere. So this is mainly called a 0 dimension. 0 dimension does not have any kind of extension in any direction. Now let's talk about what is 1 dimensional. 1D dimensional, or you can say 1 dimensional. These are the objects or shapes which have length or distance. Let's suppose this point is here from 0D dimension. Okay, and now I want to give him a friend. Okay, here this is second point. Okay, let's join these 2 points and this is the line of our shape video. Okay, so this shape have its length or distance. We are going to move in this line from left to right or right to left. Okay, so this is mainly called a 1 dimension which have length or distance in its shape. Now what is 2 dimension? Moving on 2 dimensional, I just don't like the single line. I want to make it a more dimensional. Okay, so we are going to add some lines and make a square. Okay, here's a square and this square has its length and breadth. So mainly 2 dimensional have its own length and breadth. We can move on this plane by going up and down and left to right. Okay, we can move on up and down and left and right. This is mainly called 2 dimensional. Now let's talk about 3 dimensional. Most of the children are got some of kind of confused what is 3 dimensional. So now this confusion is going to be cleared out. 3 dimensional are the objects which have length, breadth plus height. Okay, the object which possesses its length, its breadth and its height, it is called 3 dimensional. Okay, we can take any of example like cuboid or cube, any kind of things. These are example of 3 dimensional. And the most interesting fact that we are living in the 3 dimensional world. By the late 15th century, the higher dimensions were seen in most unnatural lights by the mathematicians of the day. Michael Stifel speaks of going beyond the cube just as if there were more than 3 dimensions, which is he added against the nature. So अभी तक हमने देखा 0D से लेकर के 3D तक उनका रिलेशन, इन डायमेंशंस का और ये डायमेंशंस होते क्या है. अब सवाल आता है हायर डायमेंशंस मोर देन 3D. हमने जाना कि थ्रू आउट द हिस्ट्री इस बात पे कई बार डिबेट्स हुए कि हायर डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं तो क्या होते हैं, और बाकी के इसके रिलेटेड टॉपिक्स की डिबेट. हायर डायमेंशंस. श्रीनम रामानुजम ने एक सम दिया था जिसको आपने सुना होगा, रामानुजम समेशन. इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू -1/12. सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू -1/12. अब इसी सम का यूज आगे चल के स्ट्रिंग थ्योरी में हुआ जिसके अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स को मिला के 10 डिफरेंट डायमेंशन से बना है. 10 डिफरेंट डायमेंशंस यानी लेफ्ट राइट
फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड अप डाउन के अलावा 7 मोर डायमेंशंस। सो हेलो गाइस, हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं रामानुजन ने एक इक्वेशन दी कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हमारा एक टर्म देगा जो कि होगा आएगा नेगेटिव विच इज -1/12। सो सबको सोचने रहेगा यार इम्पॉसिबल है, कैसे 1 + 2 + 3 एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है और इसका सम -1/12 को भी इतना छोटा रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहली चीज हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करेंगे लेट करेंगे। लेट करते हैं हम एक सीरीज S1, हमने एक सीरीज लेट की S1। अब उसमें लेट क्या किया कि हम अपना पॉजिटिव नंबर +1 लेंगे, देन उसके बाद एक नेगेटिव नंबर -1 लेंगे, उसका समेशन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, खत्म इसी पे होगा हमारा +1 -1 पे, बट उसका जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होंगे इवन हमारे। देन हम एक S1 ऐसी सेम सीरीज लेंगे, बस उसका हम टर्म क्या चेंज कर देंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स पे ऑड में जाके खत्म होंगे। तो इवन सीरीज समझ में आ रहा है कि सबके पेयर बढ़ते जाएंगे, तो ऐसा ऐसा कटता जाएगा, +1 -1 +1 -1, आंसर 0 आएगा लास्ट में। बट ऑड वाले में हमारा वो कोई ना कोई एक वैल्यू जाके बचेगी, क्योंकि ऑड नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड है, तो लास्ट में जाके 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हमारी ऐड करते हैं। तो जैसे हमने S1 और 1S1 को ऐड किया तो हमारा कितना आता है 2S1। देन हमारे इज इक्वल टू में हमारा दूसरा पार्ट लेते हैं इक्वेशन का। तो हमने जैसे इवन में देखा था कि सारे टर्म्स कटते जाएंगे और टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो देन यहाँ पे आंसर तो 0 ही आएगा। लेकिन ऑड वाले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मतलब कोई ना कोई एक टर्म हमारा बच जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने 1 लिया। तो जब हम इन दोनों का सम करते हैं तो हमारा आता है 2S1 इज इक्वल टू 0 + 1। देन हमने देखा कि हमारा S1 अब हमारा 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, देन यहाँ जाएगा, तो इस हिसाब से हमारी जो थर्ड इक्वेशन बनेगी कि S1 की हमारी वैल्यू आती है 1/2। हमने इसकी पहले इक्वेशन सॉल्व की थी, उससे हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी कि S1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया था हमारा। अब हम लेट करेंगे हमारी अगली सीरीज S2। हम इसको लेट करते हैं, हमारे नेचुरल नंबर हम अपने सारे लेंगे, लेकिन हम इनको कैसे ब्रेक करके लेंगे, लाइक +1 -2, +3 -4, +5 -6, मतलब एक ऑर्डर बना के चलेंगे, पहला माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन पॉजिटिव नेगेटिव, देन सेम एक और सीरीज लेंगे S2। ये सीरीज सेम ही होगी, बस चेंज इतना है कि हम इस 1 की प्लेस को छोड़ के सेम सीरीज लेते जाएंगे, +1 -2, +3 -4, +5, एंड देन ये सारी सीरीज इन्फिनिटी तक जाएगी, जैसे हमारी पहली बार गई थी। तो हमने जैसे ये सीरीज ली, हम अब इन दोनों सीरीज का ऐड करते हैं। जैसे पहली वाली सीरीज में ऐड किया था, हमने जैसे ही ऐड किया तो हमको 2S2 मिलता है। पहली वाली सीरीज में हमको 2S1 मिला था, यहाँ पे जैसे हमको 2S2 मिलता है, हम देखते हैं कि अब इन दोनों सीरीज का भी ऐड करना स्टार्ट करेंगे हम। तो जब इस सीरीज को ऐड करते तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 0। देन 2 है, 2 के नीचे 1, प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का 1 विच गिव्स -1, प्लस का 3, माइनस का 2, साइन 3 का बड़ा है जो कि पॉजिटिव है, सो हमारे यहाँ प्लस का 1। देन इसी तरह करते करते यहाँ पे भी एक सीरीज बनती जा रही है, +1 -1 +1 -1। तो अगर आपको याद हो तो हमने हमारी जो पहली सीरीज लेट की थी कुछ यही आ रही थी, तो ये सीरीज हमारी क्या आ रही थी, इसकी वैल्यू आई थी 1/2। तो हम अब क्या करेंगे, पुट करेंगे S1 की वैल्यू इस इक्वेशन में। जैसे हम 2S2 में 1/2 पुट करते हैं, हमारी S2 की वैल्यू आती है 1/4, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। सो अब हम अपनी थर्ड सीरीज लेट करेंगे S3। इसको हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से लेट कर रहे हैं कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हम लेट करेंगे। अब हम इसको फाइंड करेंगे कि आता क्या है। तो S3 हमने जैसे ही लेट किया, सारे हमारे नेचुरल नंबर आ गए। देन S2 हमारी जो पहली वाली सीरीज थी, सो वो थी हमारी +1 -2 +3 -4 +5 -6, इस तरह करके गई थी। ये हमने पिछले में लेट की थी। अब हम जब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, S3 - S2 हमने माइनस किया, तो यहाँ पे सारे साइन चेंज होंगे, 1 तो पूरा कट ही जाएगा, सो क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। जब हमारा माइनस का साइन आएगा, सो देन S3 पे हमारा माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं। तो हमारा प्लस का 4 बनेगा, देन हमारा प्लस का 8 बनेगा, देन हमारा
प्लस का 12 बनेगा। इसी तरह करते करते हमारे सारे नंबर यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर है, लाइक 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8 एंड 5 + 5 10 एंड 6 + 6। क्योंकि हमारे यहाँ पे साइन की वजह से माइनस चेंज हो रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारी सारी इक्वेशन हम ऐड करते हैं, बट यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन माइनस कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं हमने माइनस किया S3 - S2 तो 4, इनमें से हम कुछ देख रहे हैं कि हमने माइनस किया, तो हमारा पूरा माइनस आएगा, इंफिनिटी तक जा रहा है। जैसे हम माइनस करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे 4 8 12, कुछ हमको लग रहा है कि ये 4 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो हम यहाँ से 4 कॉमन उठाते हैं। जैसे हमने कॉमन उठाया 4 × 2 = 8 होता है, क्योंकि 4 1 4 था। यहाँ से हमने 12 से किया 3 आ गया। सो ये सब हमारे कॉमन वैल्यू आए। जैसे हम देखते हैं S3 - S2, ठीक है, 4 S3 आ गया। ये हमने हमारी सीरीज लेट की हुई है S3 इस वीडियो पे, थर्ड सीरीज हमने लेट की हुई है, जो कि हमारी S3 आ गई। सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया S3 इसकी वैल्यू, देन 4 यहाँ पे हमारा कॉमन आया था एंड S3 - S2। अब हम अगर देखते हैं तो S2 की वैल्यू हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, जो कि -1/4 आई थी। देन हमारा S3 जो है उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो 4S3 - S3 = 3S3 आएगा। देन 1/4 = 3S3, तो 4 उस साइड माइनस होगा, तो हमारा आ जाता है कि S3 जो हमारी है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आंसर हमारा आ गया -1/12, विच इज हमको इक्वेशन में प्रूव करना था रामानुज की एक्सप्लेनेशन में, कि सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू -1/12। हाई डायमेंशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे जो द ग्रेट मैथमेटिशियन एडविन अबॉट के शॉर्ट नॉवल द फ्लैटलैंड्स से इंस्पायर्ड है। लेट्स टेक अ फ्लैटलैंड। हम इस प्लेन को फ्लैटलैंड मान के चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ड्राइंग बना लें। लेट्स कि ये हमारा एक 2D वर्ल्ड है, जैसे अभी हम 3D में रह रहे हैं, वैसे ही हमारा एक 2D वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में 2D बीइंग्स रहते हैं। लेट्स से वी हैव अ 2D वर्ल्ड। यहाँ पे स्क्वायर, ट्राइंगल, हेक्सागोन, पेंटागोन से लेकर के सर्कल, सारे 2D शेप्स रहते हैं। इनकी आंखें इनके सामने होती है। अब हमारा आइडिया ये है कि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं और हम एक 2D स्क्रीन पे, जैसे इस टाइम हम वीडियो देख रहे हैं, हम रियलिटी में 3D है और हम चीज़ों को 2D में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस बॉल। ये रियलिटी में स्फीयर है, इसके पास इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों। अब रियलिटी में अगर हम इस बॉल पे ध्यान दें तो रियलिटी में हमको क्या दिख रहा है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको एक सर्कल दिख रहा है। हम इसकी डेप्थ को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि इस पर पड़ने वाली लाइट की वजह से। और अगर मैं इस बॉल को धीमे धीमे यहाँ पास लेके आता हूँ तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, और जब हम इसको धीमे धीमे पीछे लेके आते हो तब इसका साइज छोटा है। तो हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमको ये बताता है कि ये बॉल आगे जा रही है, पीछे जा रही है, या फिर हमको रियलिटी में बॉल 2D सर्कल की तरह दिख रही है। रियलिटी में स्फीयर है लेकिन हमको दिख रही है 2D। अब वैसे ही एक 2D वर्ल्ड में, जैसे हमको यहाँ पे ये 3D में सब 2D दिखता है, वैसे एक 2D वर्ल्ड में जितनी 2D बीइंग्स होगी उनको 1 डायमेंशन में चीजें दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल उनकी आंखें बस आगे की तरफ रहेगी और उनको इस टाइप से दिखेगी, लाइन, स्ट्रेच, छोटी बड़ी। ये जो लाइन होगी वो इस पर डिपेंड करती है कि वो किसको देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये स्क्वायर है और इसके सामने एक सर्कल खड़ा हुआ है। सो इस स्क्वायर को सर्कल रियलिटी में कैसे दिखेगा? उसको सर्कल की
उसको रियलिटी में एक लाइन दिखेगी जो सर्कल के डाया के बराबर होगी। उसके एंड पॉइंट्स जहाँ पे सबसे बड़ा लाइन सबसे बड़ी होगी, यानी उसको स्क्वायर को सर्कल कुछ इस टाइप से दिखेगा, एक लाइन जो उसके डायमीटर के बराबर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा जब एक 2D वर्ल्ड में हमारे एक 3D ऑब्जेक्ट एंटर करेगा। वैसे जैसे हम लोग चीज़ों को पता करने के लिए कि ये छोटी बड़ी दिखती है हमको, कि ये आगे है पीछे या बड़ी है छोटी है, वैसे ही इनको भी पता चलेगा इस लाइन की साइज से कि जितनी बड़ी होगी ये उतना पास है ऑब्जेक्ट, और जितनी छोटी होगी ये उतना ज़्यादा दूर है पास। नाउ हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये स्फीयर, ये हमारे 3D वर्ल्ड का एक स्फीयर है जिसके पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों है, और ये है हमारा 2D वर्ल्ड। अब क्या होगा जब मैं इस 2D वर्ल्ड से एक 3D ऑब्जेक्ट निकालूंगा। तो मेरा 2D वर्ल्ड है, तो इसके थ्रू एक 3D ऑब्जेक्ट निकला। रियलिटी में स्क्वायर अगर उसके सामने खड़ा हो तो स्क्वायर को वो स्फीयर कुछ इस टाइप से दिखेगा, छोटा। सबसे पहले उसकी जो सबसे छोटी लाइन होगी, इसका जो ये एंड पॉइंट होगा, इस एंड पॉइंट की जितनी लेंथ होगी उससे लेकर के उसको पहले डाय तक और फिर डाय से लेकर के वापस एंड पॉइंट तक इस लेंथ का दिखेगा। एक टाइप से उसको एक लाइन दिखेगी जो धीमे धीमे करके स्ट्रेच हो रही है और वापस से फिर छोटी हो रही है और फिर गायब हो जाएगी। Here's what it looks like when the sphere passes through Flatland from the square's perspective. And this blows his little square mind. अब सवाल ये है कि वैसे ही हमारे लिए हम जो एक 3D बीइंग है उसके लिए 4D बीइंग कैसे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारे लिए एक 4D स्फीयर, एक हाइपर स्फीयर 4D स्फीयर हमारे डायमेंशन में एंटर किया। हमारा जो 3D वर्ल्ड है लेंथ, हाइट, लेंथ और ब्रेथ का, उसमें एक हाइपर स्फीयर एंटर करता है। अब हमको दिखेगा 2D में ही, लेकिन हमको वो किस टाइप से दिखेगा, सवाल ये है। हमारी कैपेसिटी 2D तक है तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी तक देखेगा अपने 2D में। तो हमको वो स्फीयर सबसे पहले अचानक से हमारे वर्ल्ड में एंटर करता हुआ दिखेगा। अचानक से एंटर करेगा जिसका साइज धीमे धीमे करके बड़ा होगा और फिर अचानक से वापस धीमे धीमे करके छोटा होके गायब हो जाएगा। Hypersphere is the 4D equivalent of a 3D sphere. When the 4D object passes through the third dimension, it'll look something like this. Let's look at one more way of representing a four-dimensional object. Let's say we have a point. तो हमको एक आइडिया मिल गया है कि एक 4D स्फीयर या कोई 4D ऑब्जेक्ट किस टाइप से दिखेगा। Now we are going to see how will different dimensional being will move in their dimensions. First हम एक hypothetical 1D being लेते हैं। ये being बस एक कोऑर्डिनेट में चल सकता है और we can say it can only travel in one dimension. Now let's take our 2D being. This being can only travel in two different coordinates, or we can say in two different dimensions. Now let's take our 3D being. This being travel in all three coordinates specifying its position. Example, kite fly in the sky 3 dimensions because it move up, down, right, left and forward, backward. Okay, so when I said that we are living in a 3D world, it means that we are living in a 3 space dimensional world. What do you mean by 3 space dimensional world? As I have already explained, कि 3 dimensions, length, breadth, height, ये 3 dimension है, ये space dimension है। रियलिटी में हम एक 4 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं जिसको नॉर्मली हम 3+1 डायमेंशन कहते हैं। 3+1 डायमेंशन क्यों? व्हाट इज दैट अदर 1 डायमेंशन अदर देन दीज 3? द फोर्थ डायमेंशन एज वी स्पीक ऑफ इज टाइम। और हम टाइम को एक डायमेंशन की तरह लेते हैं जो बाकी 3 स्पेस डायमेंशन से डिफरेंट एक्ट करता है। तो हम रियलिटी में एक स्पेस
टाइम यूनिवर्स में रहते हैं जिसमें स्पेस और टाइम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 3 स्पेस वर्ल्ड मतलब आई मीन 3 स्पेस डायमेंशन एंड 1 टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हम लोग को पता है 0D, 1D, 2D एंड 3D डायमेंशंस क्या होती है। जैसे एक पॉइंट लेते हैं तो 0D का एग्जांपल होता है, 2 पॉइंट लेते हैं उसको ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी जो 1D का एग्जांपल लेता है। फिर 4 लाइंस लेंगे उसको ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर बनेगा जो 2D का एग्जांपल रहता है। फिर 6 स्क्वायर्स लेंगे उसको ज्वाइन करेंगे तो क्यूब बनेगा जो 3D का एग्जांपल रहता है। उसी प्रकार जब 8 क्यूब्स लेंगे और उसको ज्वाइन करते हैं तो एक 4D का एग्जांपल मिलते हैं। 4D को हम टेसरेक्ट भी कहते हैं। जिस प्रकार 3 डायमेंशनल क्यूब के किसी भी पॉइंट से हमें 3 परपेंडिकुलर लाइंस मिलती है, उसी प्रकार 4 डायमेंशनल क्यूब के किसी भी पॉइंट से हमें 4 परपेंडिकुलर लाइंस मिलती है। ओके। Okay, so now I wanted to clear a misconception for you. That there is no first dimension, neither there is no third or second dimension. What? Please don't dislike the video now. इसका मतलब ये नहीं है कि 3 डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई वे या कोई सीरियल नंबर नहीं है कि फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में क्लासिफाई कर पाए। इसी टाइप से जैसे हम एक जार में 3 ग्लास पानी डालते हैं तो और फिर मैं पूछूं कि इस जार में पहला, दूसरा और तीसरा ग्लास, तीनों ग्लास के पानी को अलग करो, तो ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डायमेंशन को अलग करो, इनका कोई सेंस नहीं निकलता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि वी आर लिविंग इन 3+1 डायमेंशन यानी 3 स्पेस डायमेंशन एंड 1 टाइम डायमेंशन, ये वैसा ही है जैसे मैं एक जग में 3 ग्लास पानी और 1 ग्लास ऑयल डालू, तो इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स है, जिसमें 3 ग्लास हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है जो सेम नेचर शो करता है और 1 ग्लास डिफरेंट लिक्विड है, 1 ग्लास ऑयल यानी जो डिफरेंट नेचर शो करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन 3+1 डायमेंशन, हमको नहीं पता कि स्पेस डायमेंशन कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड है। वैसे ही हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, जब स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ल्ड 9 स्पेस डायमेंशन एंड 1 टाइम डायमेंशन से बना है, जिसमें हम कोई क्लासिफाई नहीं कर सकते कि उन 9 डायमेंशन में से कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड और कौन सा 9th डायमेंशन है। So our conclusion is that Maths and physics are the superior subjects and we don't need other subjects जो हमको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। Okay, so according to you, if physicists are so much better than a doctor, then next time if you get sick, I think you should visit a physicist rather than a doctor. no, that is not our conclusion. Our conclusion is that that dimensions are very important in our life.